Hello students, we are reading lesson 9. Up you go. So, let's start from these questions. Okay? At first, we will see the answer of these questions and after then, we will read next day diary. Okay? So, here you see, is there anyone in your class whose language you do not understand or who does not understand yours? What do you do in such a case? So, these questions do by yourself. Okay? Now, have you ever lost your way? What did you do then? So, yes, see, yes, I had lost my way a couple of times. I did not panic and dialed my father's number. I told him about my way, then where I am. Okay. So second question, what do you think Khondombi would have sung loudly? So the answer is Khondombi Khondombi may have wanted to send some signals to the rescue team. Singing a song was a good way to send audible signals. Okay. Now question number 4. Have you ever seen someone doing something special to get over their fear? What and when? So yes, I have seen my sister shutting her eyes during a ride on a giant Ferry wheel. She said she did that to get over her fear. Okay? Now, here one more question. Ask your friend for a book without speaking. Try to explain something to the class in the same way. So, this question try to do by yourself because this is an activity. Okay? Now, the day of 18 February 1984. We were standing at a height of 2,134 meters. We were to spend one night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double-layered plastic sheets for the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep us warm. We put in the pegs and began to put up the tent. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. We were feeling very hungry. We collected some firewood and stones to make a chulha and cooked some food. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers, which helped in keeping us warm. We were all very, very tired. So very soon we fell asleep. तो यहाँ 18 फरवरी की बात हो रही है. इनका जो कैंप था स्नो में लगा हुआ था, बर्फ के बीच में. ठीक है, तो वही ये बता रही हैं कि हम 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हुए थे, है ना. हमने वहां एक रात गुजारनी थी. सब बिजी थे क्या करने में, अपना अपना टेंट बनाने में, और वो भी डबल लेयर्ड प्लास्टिक सीट का यूज करके टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, क्यों? क्योंकि डबल लेयर इसलिए कर रहे थे ताकि हवा अंदर ना आ सके और हम लोग इतनी बर्फीले मतलब स्नो वाला जो एरिया था वहां पर हम गर्म रह सके, है ना. तो हमने क्या किया, अपने टेंट को खूंटियां गाड़ी, पैग मीन्स होता है खूंटी गाड़ना स्टार्ट किया और उसके बाद टेंट लगाना स्टार्ट किया. जैसे ही हम एक साइड से टेंट को बांधते तो दूसरी तरफ से विंड हवा जो थी उसे उड़ा ले जाती.
है ना। तो बड़ी मुश्किल से खींच तान के मैनेज करके टेंट खड़ा हुआ। ठीक, उसके बाद हमने टेंट के आइट साइड क्या किया, ड्रेन कर दिया, गड्ढा कर दिया। अब हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी, है ना। तो हमने कुछ फायरवुड मतलब सूखी लकड़ियां इकट्ठी करी, कुछ पत्थर इकट्ठा किया और चूल्हा बनाया और उस पर कुछ खाना पकाया। अब खाना खाने के बाद हमने सारा वेस्ट वहां से कलेक्ट किया, है ना, और कैंप का जो साइड था वो हमने पूरा क्लीन कर दिया। अब जल्दी हम लोग कहाँ जाने वाले थे, अपने स्लीपिंग बैग्स में। ठीक है, स्लीपिंग बैग पता है, बैग्स आते हैं स्लीपिंग वाले, है ना, उसके अंदर घुस कर और इंसान सो जाता है, चेन लगा लेता है। ठीक है, तो अब वो मैं सोच में थी, क्या ये कंफर्टेबल होगा, क्या इसके अंदर हमें नींद आ जाएगी, क्या इसके अंदर हमें ठंड नहीं लगेगी। लेकिन जो बैग था वो सॉफ्ट फेदर से, फेदर मतलब जो रुआ रुआ टाइप का नहीं रहता, और जो गर्माते हैं, मतलब ठंड के टाइम में गर्माते हैं, गर्म रखते हैं हमें। ठीक है, तो उससे भरा हुआ था बैग, है ना। तो जो हमें क्या करता, वार्म ठंडा वो गर्म रखने की में मदद करता। तो हम बहुत थके हुए थे सारे लोग, तो हमें बहुत जल्दी नींद आ गई। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे तो हमने देखा कि चारों ओर क्या थी, बर्फ जमी हुई थी, है ना, वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लेक्स, और गिर भी रही थी। वो इतना सुंदर लग रहा था देखने में, सारे प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, पूरा माउंटेन जो था वो पूरा वाइट दिख रहा था। अब आज हमें और ऊंचा जाना था, 2700 मीटर्स तक पहुंचना था, है ना। तो हम केयरफुली स्नो पर वॉक कर रहे थे स्टिक्स की हेल्प से। ठीक है, छड़ियों का यूज करके, स्टिक का यूज करके हम क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। ये बहुत डिफिकल्ट था कि कहीं हम फिसल ना जाएं। स्नो क्या करती है, फिसलन पैदा करती है ना। तो दोपहर के टाइम में हम कहाँ पहुंचे, स्नो कवर्ड माउंटेन में, माउंटेन जो पूरी तरह स्नो से कवर था, है ना। तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, स्नो की बॉल्स बना बना कर फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और क्या बना रहे थे, बिग स्नोमैन बना रहे थे। ठीक है, तो वहां हमें बहुत अच्छा लग रहा था और हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। नाउ लास्ट डे एट कैंप, सो वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। तो अब हम लास्ट में कैंप फायर के लिए तैयार थे। मतलब लास्ट में क्या होता है, जब कोई भी कैंप खत्म होता है तो लास्ट डे जो होता है सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो सारे जो ग्रुप थे वो प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे थे, हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग जोक्स बोल रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे कैंप फायर के बीच में, मतलब बीच में आग लगा दी जाती है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आधी रात हो गई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे उनने मुझे बुलाया। मैंने सोचा, ओ नो, मैंने क्या गलत कर दिया, है ना। अब इस समय मैंने क्या कर दिया कि सर मुझे बुला रहे हैं। लेकिन सर ने मेरा नाम अनाउंस किया बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए। ठीक है, मैं तुरंत खड़ी हो गई, उनने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी आंखों में जॉय मतलब खुशी के आंसू थे, और मेरा जो फेस था वो क्या था, उतरा हुआ था एक प्रकार से। ठीक है, नाउ here some questions, so this is your homework. Okay, here one more question, this is also your homework. Find out. Tomorrow we will read next page. Okay.